എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോണം. എനിക്കവരെ പേടിയാ. മായ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതി കാണും. അതുകൊണ്ട് മായ ഇനി അവരാരെയും കാണരുത്. പോലീസുമായിട്ട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അവനെ എന്താ ചെയ്തത്? എന്താ ചെയ്തെന്ന് ओ बैंक अब इसको टॉर्चर करने लगे. उसमें वैसे डुबाते नहीं डुबाते पानी में डुबाते हैं. अब कहेंगे ड्रामा. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയൂല, പറയൂല. അതിനു മുമ്പ് ആ പെട്ടി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറ. അതിന് തന്നെയാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പുക്കുട്ടൻ എവിടെയെന്ന്? അവന്റെ കയ്യിലാ പെട്ടി. अपुकुटन के पास है सूटकेस है. ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक वैसे बजा रखा है नहीं? साइड वाला उसमें नहीं बजाते कोई बैकग्राउंड म्यूजिक. तब ज्यादा वो फनी लगता है, वो सीन नहीं लगता है. सुल्तान निकाल देते ड्रामा करेंगे. തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കടാ. അതങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാൻ. ഏത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചില്ലേ ആ പെട്ടി? പെട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കളയാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. മര്യാദക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ. എന്റെ ദൈവമേ, ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഇവൻ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ? നീ പറയണ്ടാ. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നീ ചുമ്മാ പണിയരുത്. അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നീ ഒരു മാതിരി വേഷം കെട്ടെടുക്കും. എന്താടാ ഇതൊക്കെ? പറയണ തെണ്ടി അത് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്. രക്ഷപ്പെടാൻ നീ സമ്മതിക്കില്ലല്ലേടാ. समझ नहीं आ रहा. एक्टिंग करनी है उसमें ऐसे ही बोलता राजपाल यादव नहीं बोलता. एक्टिंग है. दरवाजे खोल रहे हैं. वो समझ गया प्लान है. अब खोलेगा बाहर वाला है. खोल गया. अब भाग गया यहाँ से. बाहर विंडो. सामने और रुक गया. ओ बैग आपस में लड़ेंगे. पर उसमें रुक जाते हैं नहीं. फिर दोनों भाग जाते हैं. इसमें लड़ाई होने लगी और ये बीच से निकल जाते हैं फिर. पर इसमें सब लड़ रहे हैं. उसमें लास्ट में डाला हुआ था नहीं पर यहाँ पे भी वो नहीं कहते हैं. बेवकूफ बनाते हैं दोनों तरफ से. लड़ाई नहीं होती यहाँ पर. बैग खतरनाक है बैग. पागल हो गया. बड़े खतरनाक है. ओ अब भाग गए. वो लोग लगे आपस में लड़ने में.
जिनसे दुश्मनी थी वो भाग गया। ये लोग फालतू में लड़ रहे हैं। ओ बा जिन्हें पीटना था वो तो भाग गए। कहाँ छुपे हुए हैं? നമ്മൾ ആരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ആ പെണ്ണിന്റെ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് अब ലോകം മുഴുവൻ उस लड़की പറഞ്ഞു को നടന്നിട്ടില്ലേ? करेगा kidnap? അതുപോലെ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ. उस लड़की को और उसके दादाजी को പോലീസിനെ അറിയിച്ചാലോ? എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടിയും കൂടെ കൊള്ളാൻ. മഹാദേവ, നമുക്കിനി ആരെയും കാണണ്ട. ഇവിടുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം. എങ്ങോട്ട് പോകാൻ? തീർന്നെങ്കിലോ? അതെ, അതാ അതിന്റെ ബുദ്ധി. सच्चाई നമുക്ക് बताना എന്താ चाह रहे തുറന്നു हैं। പറയാം. നിങ്ങൾ വാ. ओ पुलिस ऑलरेडी पुलिस आ रही। ഇതെന്താണ് പോലീസും പട്ടാളവും ഒക്കെ? നമുക്ക് പോകാടാ. നീ വാ. अपने घर चला गया। ओ बा ओ पकड़ ली पुलिस ने। ദൈവമേ इसको पहचान लिया। ഈ അവനുണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയവൻ. വരാനാ പറഞ്ഞത്. തോമസ് കുട്ടി വിട്ടടാ. പിടിക്കവനെ. आके बैठ और यहाँ से भागने लगी। पुलिस तो पकड़ लेगी ना। गायब हो गए, छुप के गए। वही आगे देखो, इसको पहचानते नहीं है ना। ये कहाँ से पहचानेगी? ओ बताते उसने। മനായി. पहचान गई। उसको किडनैप कर देता हूँ। अपनी माम को फोन कर रहा। എവിടുന്ന നീ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അയ്യോ അമ്മേ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ മുഴുവൻ പോലീസ്. उसे बता दिया है। माया भी गायब है उसकी। माया डैडी भी गायब है। ഹലോ ഹലോ എന്താ കാര്യമെന്ന് പറ. അവളെയും അവളുടെ മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയെ ഒന്നും കാണാനില്ലെന്ന്. നമുക്ക് ഈ നാട് വിടാവുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടെ നമ്മളെ കൊല്ലുവടാ. കൊല്ലട്ടെ, ആരെ കൊന്നാലും ശരി, ആര് ചത്താലും उसमें ശരി. ये इमोशनल वे में दिखा रहे हैं ना इन चीजों को। उसमें हर चीज वो फनी वे में दिखाते हैं ढोल में। നമ്മള് जैसे यहाँ നമ്മൾ पे ആദ്യം पूरा इमोशनल वे में അത് दिखा रहे हैं। കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ പെട്ടി उसमें हर चीज फनी दिखाते हैं। और सूटकेस अब चले गए। हाँ പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാണ്. ഞങ്ങൾ സേതുവിന്റെ കൂട്ടുകാരല്ല. സേതുവിനെ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. सामने बोल दिया उन्होंने। മാത്രമല്ല അമ്മച്ചി, മായയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇനി അമ്മച്ചിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. എന്താ? ആരാ ആരാ മായ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത്? ഒരു ജോൺ ഹോനായി. ओ संदेश नाम। അമ്മച്ചിയെ ഏൽപ്പിക്കാതെ സേതു അത് എവിടെയോ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അതിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അമ്മച്ചി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. सूटकेस ढूंढना पड़ेगा। ഞങ്ങളല്ല, അയാളാ പറഞ്ഞത്. ആര് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ശരി, എനിക്കതൊന്നും കേൾക്കണ്ട. उसको यकीन എന്നോടൊന്നും नहीं है। പറയാൻ വേണ്ട. അമ്മച്ചി എന്റെ ആൻഡ്രൂസും സേതുവും കൂടി അവന്റെ അപ്പച്ചന്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ഈ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു. അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം. സേതുവിന്റെ പെങ്ങളുടെ ജീവൻ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കത് തിരിച്ചു തരണം. इससे मांग रही है। पता नहीं इसे दिया था कि नहीं दिया था उसने। ओ इसी के पास है वो बैग तो। इसी को दिया था उसने। പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ, എന്റെ ആൻഡ്രൂസ് ഇനി മടങ്ങി വരില്ല എന്ന്. ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാം. എന്റെ മോൻ വരും.
ഒരിക്കലും उसको पता नहीं है क्या उसका बेटी की मौत हो गई। पता तो ऐसे बताया तो था उसने, मायने नहीं बताया था ऐसे। जाएगी कहाँ है? ओ ये देख रहा है। वो देख रहा था उस वीडियो को, देखो। ओ बैंक चारों दोस्त ने पकड़ लिया उसे। ओ उसके हाथ में आगे മുന്നോട്ട് വരരുത്, വന്നാൽ കൊല്ലു ഇവനെ. മായയോ അതോ എന്നെയോ? എവിടെടാ മായ? अच्छा इसमें माया നടക്കാൻ. पता नहीं इसमें लास्ट में एंडिंग कैसी है, नहीं दोनों में तो बहुत लड़ाई होती है लास्ट में। इसकी एंडिंग नहीं है शायद वैसी। क्या करेंगे? तो उसको छुड़ा रहे ना माया को। ഒന്ന് കുട്ടി നീ വണ്ടി എടുക്ക്. अरे फिर से पकड़ लिए थे वो। फिर से पकड़ लिया उसे। वो लड़ाई नहीं कर रहा था वो। अच्छा अभी नहीं देखिए माया को। वो लोग भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ज्यादा निकलने वाले। पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया, वो उसके घर आ जाएगा। ओ होना है। अब गैस ऑन कर देगी है, तब तक वो गेट ओ आ गया, वो देखो अंदर। ये भूल जाते फिर है। उसमें वो उसके गर्लफ्रेंड के पास आता है ना, उसमें उसकी माँ का नहीं था रोल, रोल में रखा हुआ, बस उसकी गर्लफ्रेंड को दिखा रखा था बस। और लास्ट में उसी के घर आता ना। दरवाजा बंद कर दिया। तो गुंडे की आवाज आ रही है, उसमें छुपती है वो। अब इसे पता नहीं चला ना। उसमें तो वो देख लेती वो उसको आते हुए, तब छुपती वो। जरा सूट के दो देखिए, इसलिए छुपा हुआ था वो। പേടിക്കണ്ട, അമ്മച്ചി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ എന്നെയും മറുവിരൽ തുമ്പിൽ ആൻഡ്രൂസിനെയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ പണ്ട് അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു. പ്ലീസ് അതിക്ക് തന്നേരെ. अब निकालेगी पिस्तौल है। ओ इसने वो भी निकाल दिया, पहले निकाल। അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ ചാകില്ല അമ്മച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും പെടുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. चलेगी। ये उसके पीछे भागा क्यों नहीं? चुपचाप खड़ा हो गया। अब छुपती है वो।
ओ जला देंगे स्मेल भी नहीं आ रही उससे। वही किचन में जा रखा ना। जल गया। बच गई। अब ये रुपए इसी के पास देते हैं ना, इस लेडी के पास। ऐसा होगा इस फिल्म में। लड़की जा रही है हमें। ആൻഡ്രൂസിന്റെ അമ്മച്ചി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് പോയതാ. എനിക്കെന്തിനാ? ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. इसने उन्हें दे दिया वो रुपया। അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എന്നെ മറക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൂട്ട വരട്ടെ. अबे पूरा सूटकेस दे दिया क्या? सूटकेस उनके पास है। मतलब उसकी माँ ने इससे दे दिया था। हाँ, पर ऐसे क्यों किया होगा? उन्होंने जानबूझ के छोड़ा हुआ शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। പെട്ടികൾ പറഞ്ഞു. किसी ने चेक नहीं किया सूटकेस कभी? ഈ പെട്ടി अच्छा, जानबूझ के नहीं लिया उसने वो सूटकेस। कितने सही लड़की थी वो। नहीं, पर उसे पता था वो किससे पैसे हैं? हाँ तभी तो बोलो उसने वो सूटकेस तुम्हारे लिए। ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക്. खुश हो गया। ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക്. തോമസ് കുട്ടി വിട്ടോടാ. और तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है इन हरिहर नगर। अच्छी फिल्म थी, मतलब फिल्म तो हमने देखी हुई थी पहले से। मतलब ढोल देखी हुई थी। तो ढोल इसका रीमेक है। तो ढोल ज़्यादा अच्छी लगी हमें। नहीं, ये फिल्म भी अच्छी है। अगर ये फिल्म नहीं बनती तो फिर ढोल भी कहाँ से बनती? मतलब ये ओरिजिनल है तो मतलब फिल्म अच्छी एडवांस है। किया गया है। ये फिल्म अच्छी है, उसको एडवांस किया गया है उसमें और ज़्यादा। एडवांस नहीं बोल सकते, मतलब ये कि इम्प्रूव किया गया है बहुत सारी चीज़ों को ना। भले ये फिल्म भी अच्छी है, बाकी जो कॉमेडी है और कहानी है वो यही फिल्म से शुरुआत होती है कि मतलब कहानी वगैरह सब सेम है। बस उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा है उसमें डाली हुई। उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है। और उसमें ढोल में एक और फिल्म से भी लिया हुआ है। इस फिल्म मतलब बेसिक कहानी जो है वो तो इसी फिल्म की है, पर उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो जो हमने दिलीप की फिल्म देखी थी तो उस फिल्म से लिया गया है कुछ चीज़ें ना। जैसे जब वो उसमें वो जो चीज़ थी, जब वो एक फूलों की दुकान खोलना चाहते थे ना, और फिर उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। फिर वो बैंक में जाते हैं, फिर वो बैंक मैनेजर पहले वाला तो मान जाता है लोन देने के लिए, पर जब वो दूसरी बार जाते हैं लोन लेने के लिए तो फिर दूसरा बैंक मैनेजर वहाँ आ जाता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है पहले वाले का। मोहनलाल की फिल्म थी ना मोहनलाल की थी, दिलीप की थी। मोहनलाल की थी, अच्छा जब मोहनलाल की थी तो मुझे लगा दिलीप ना मोहनलाल की थी। हाँ, और फिर वो दूसरा बैंक मैनेजर मना कर देता लोन देने से। फिर वो जब वो देखते हैं, जब बैंक मैनेजर लोग देखता है कि ये इसको जानता है उसकी फैमिली, तब वो देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो ये सब ड्रामा करते हैं। तो कुछ चीज़ें उससे ले रखी थी, बाकी बेसिक कहानी तो इसी से ली हुई। और कुछ चीज़ें उस फिल्म से ली हुई थी। और बाकी ये फिल्म मतलब काफ़ी अच्छी फिल्म है और ओरिजिनल है। तो अगर ये नहीं होती तो फिर ढोल भी नहीं बनती। तो मतलब बेसिक कहानी तो इसी फिल्म की है, बाकी कुछ चीज़ें उस फिल्म से ली गई हैं। और उसमें ये है कि ढोल में मतलब हर चीज़ फनी वे में दिखाई गई है। हाँ, उसमें मतलब पूरी फुल कॉमेडी तरीके से दिखा रखी है। अब इसमें ऐसा था कि इसमें कहीं पे वो सीरियस वे में दिखा रहे थे चीज़ों को ना, सीन्स को, बहुत सारे सीन्स को। पर उसमें कुछ सीन्स को दिखाते हैं वो सीरियस वे में, जहाँ पे वो लड़की मतलब उसके बारे में बताती है
कि उसकी मौत कैसे हुई और क्या क्या वजह थी, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं सीरियस वे में। पर बाकी जब वो उन चारों को दिखाते हैं तो उनको हमेशा पूरी फिल्म में कॉमेडी में ही दिखाया जाता है, कॉमेडी एज ए कॉमेडी वे ना। पर इसमें जैसे जब वो मार खा रहे थे या जब वो भाग रहे थे तो जो भी कुछ जब उनके साथ कुछ उस तरह की चीज़ें हो रही थी, खराब चीज़ें हैं, तो उसे मतलब एक सीरियस वे में दिखा रहे थे और इमोशनल वे में दिखा रहे थे इस फिल्म में। तो फिर वो उतना मतलब वो नहीं लग रहा था ना, एंटरटेनिंग नहीं लग रहा था वो फिर वैसा लग रहा था जैसे हम कोई सीरियस मूवी देख रहे होंगे कहीं कहीं पर जहाँ पर वैसे सीन आ रहे हैं, मतलब सैड सीन तो, और नहीं सैड सीन नहीं, मतलब जहाँ पे सैड सीन है वहाँ पे तो मतलब वहाँ पे तो उस फिल्म में भी ढोल में भी उन्होंने वैसे दिखाया था। लेकिन जहाँ पे इन चारों को दिखा रहे थे ना, इन चारों की बात कर रहा हूँ मैं, ये 4 दोस्त रहते हैं, जहाँ पर तो जब ये मार खा रहे थे, जब उन्हें किडनैप किया हुआ था और जब वो पुलिस से बच के भाग रहे थे, जो भी कुछ उनके साथ गलत हो रहा था उस वक्त वो बिल्कुल उसे सीरियस वे में दिखा रहे थे उस सीन को, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसी तरह का चल रहा था। मतलब पर ढोल में नहीं ऐसा, उसमें वो जब भी उन चारों को दिखाते हैं, भले वो 4 मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, पर उन्हें कॉमेडी के वे में दिखाया जाता है ढोल में, तो इसलिए वहाँ पे हमें ढोल में ज़्यादा मज़ा आता है। पर इसमें थोड़ा वैसा लग रहा था फिर कि हम तो कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, पर इनको ऐसे क्यों दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ उसमें अच्छी थी ढोल में ना। तब इस फिल्म में थोड़ा सा वैसे ना पूरा फील नहीं होता, पूरी फिल्म कॉमेडी की है, ऐसा फील नहीं होता। मतलब वहाँ पे तो अच्छे से फील हो रहा था जब वो लोग जो भी कुछ वो कर रहे थे, अपने उस लड़की को मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी झूठी कहानियाँ उसे सुना रहे थे, वहाँ पे तो सब कुछ फनी था। पर जब वो मुसीबत में पड़ गए थे ना ये चारों, तब जो भी कुछ उन्हें दिखा रहे थे जिस तरह से, तो वो बिल्कुल सीरियस तौर पे दिखा रहे थे। मतलब तब लग नहीं रहा था कि ये कॉमेडी फिल्म होगी। तो वो चीज़ ढोल में अच्छी की हुई थी ना, उस चीज़ को ढोल में मतलब इम्प्रूव किया गया था। और बाकी ढोल में एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी थी, मोहनलाल की फिल्म से भी ली गई थी बहुत सारी चीज़ें। तो फिर वो फिल्म ज़्यादा एक तरह से उसमें ज़्यादा चीज़ें आ गई थी फनी ना, और उसमें फनी सीन ज़्यादा थे, और स्टोरी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी उसमें, वही वाली वही जो फूलों की दुकान खोलना चाहते थे, तो उस वजह से मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ें थी उसमें फिर उसकी स्टोरी भी लंबी हुई थी और ज़्यादा कॉमेडी आ गई थी, और ज़्यादा कॉमेडी बन गई थी, फिल्म लंबी हो गई थी। इसमें फिर जो वो चीज़ें हटाई गई तो 2 घंटे की फिल्म बन गई है। नहीं हटाई नहीं गई, ये तो ओरिजिनल है ना। पर इसमें इतना ही था, मतलब उसमें इतना ही था, उसमें एक्स्ट्रा डाली गई, उसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा लंबी हो गई। और ये था कि वो ज़्यादा फिर फनी हो गई थी वो फिल्म। और फिल्म अच्छी है, फिल्म तो अच्छी है, एक्टिंग सबकी अच्छी है, और मेन बेसिस यही था ना एक फिल्म का। और पर उसमें जो वो था ना ढोल में, उन्होंने वो चीज़ बहुत अच्छी की थी कि उसमें उन्होंने सूटकेस वगैरह कुछ नहीं बोला था, उसमें केवल ये बोला था कि ढोल है, ढोल के अंदर थे ना रुपए। तो वो सस्पेंस जो था वो बहुत ही अमेजिंग था उसमें, क्योंकि हमें भी कंफ्यूजन रहता है कि क्यों ढूंढ रहा है ढोल, इस ढोल का मकसद क्या है, मतलब ऑडियंस को भी पता नहीं रहता है कि क्या सीन है आखिर, और उस वजह से फिल्म ज़्यादा फनी बन जाती है। जिस तरह से वो जब सुनते नहीं है कि जब वो उनसे ढोल मांगता है तो वो बोलता है ये ढोल का क्या करेगा ये मैंने नहीं समझ आता है ढोल क्यों मांग रहा है। तो उसमें नहीं बोलते राजपाल यादव कि अरे किसी की बाप की मैया में तो बज रहा है ढोल वहाँ से उठा के दे देते थे। तो ढोल का जो उसमें सस्पेंस था वो बहुत ही अमेजिंग था, और इसमें तो सीधे सूटकेस बोलता है, पर उसमें जिस तरह से वो चेंज किया था ना ढोल, वो बहुत ही अमेजिंग था। और उस फिल्म का टाइटल भी फिर उसी पर रखा था ढोल। तो मतलब जो ढोल रखा गया था तो वो एक सस्पेंस वाली फिल्म बन गई थी था, और वो फिर लास्ट में जाके खुलता है, क्या लास्ट में खुलता है, जब वो लास्ट में पटकता उस ढोल को, बहुत इंटरेस्टिंग बन गया था वो फिल्म में ना। फिर तो सिंपल सूटकेस पता चल रहा, तो पता है कि लग रहा था आइडिया कि सूटकेस में पैसे ही होंगे और क्या होगा, पर उसमें नहीं चलता पता कि ढोल का आखिर वजह क्या है, ढोल को क्यों खोज रहा है ये। तो वो जो सस्पेंस था उसमें रखा वो बहुत अच्छा था, अमेजिंग। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ढोल फिल्म में इम्प्रूव की है उन्होंने ना, उसे ज़्यादा फनी बनाया गया है, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है फिल्म।
बाकी ये भी अच्छी फिल्म है। और उसमें जो लास्ट में जब वो सस्पेंस खुलता है ढोल का तो बहुत मजा आता है। तो इसमें भी भले ही उन्हें पता नहीं था कि इसमें है क्या, पर ये कि हमें लग रहा था कि मतलब पैसे ही होंगे, चाहे कोई भी देखेगा, अगर किसी ने ढोल ना भी देखी हो तो वो भी समझ ही जाएगा कि पैसे ही होंगे उसमें, और क्या होगा सूटकेस में। पर ढोल जिस तरह से उसमें वो कॉन्सेप्ट था ना उस फिल्म का, ढोल वाला, तो उसमें नहीं लगता आइडिया बिल्कुल भी कि ये ढोल क्यों खोज रहे हैं और आखिर मतलब क्या वजह है उस ढोल को खोजने की। तो वो उसमें एक सस्पेंस बन जाता है उस फिल्म में, मज़ेदार बनाता तो वो चीज़ उस फिल्म को मज़ेदार बनाती ज़्यादा है। फिल्म अच्छी है ये भी, और वो तो और भी अच्छी है। पर इसमें ये था कि इसमें डायलॉग ज़्यादा लंबे नहीं थे। हाँ, इसमें मेन पॉइंट पे फोकस किया गया था। हाँ, जैसे ढोल में फनी डायलॉग्स काफ़ी सारे हैं और काफ़ी लंबे हैं, पर इसमें उतने लंबे नहीं थे डायलॉग। इसमें थोड़ा मतलब लिमिटेड ही थे, वो ज़्यादा ऐसे लंबे नहीं थे, पर उसमें फनी डायलॉग्स मतलब लंबे लंबे हैं, काफ़ी सारे हैं। और उसमें सीन भी मतलब और भी हैं बहुत सारे फनी सीन्स, जैसे जब वो उसे ऑफिस भेजता है, जो उन्होंने मोहनलाल की फिल्म से लिया था, तो वो उसे और ज़्यादा अमेजिंग बना देता है उस फिल्म को ना। जब अपने दोस्त को भेजता है वो ऑफिस में, फिर वहाँ वो पान मंगाता रहता है, जूस मंगाता रहता है अपने लिए। और एक वाला सीन जो था जब वो उस लड़की के दादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं अपनी कार के पीछे, और फिर वो आते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं उसके दादाजी की, पर वो उसे कार को धक्का, उन्हें लगता है कि धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उस कार को वो धक्का देते देते खाई में गिरा देते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें थी ना जो और ज़्यादा फनी बनाती उस फिल्म को, एक्स्ट्रा डाली गई थी। हाँ, वो पूरी कॉमेडी फिल्म थी, वो पूरी कॉमेडी बनाई गई थी। हाँ, बस उसमें सीरियस वहाँ पे दिखाया गया था जहाँ पे जैसे वो लड़की मतलब अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और क्या क्या हुआ था और कैसे उसकी बॉयफ्रेंड की मौत हुई, तो वहाँ पे उसे पूरा सीरियस दिखाते हैं। पर बाकी वो फिल्म पूरी कॉमेडी बनाई गई थी, और इसलिए वो फिल्म ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है। पर ये फिल्म भी अच्छी थी, काफ़ी मज़ा आया इस फिल्म को देखने में भी। एक्टिंग सबकी अच्छी है, और एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सबकी ना इसमें भी। लग रहे थे वो दोस्त ही होंगे। सुरेश गोपी, अशोकन, मुकेश, जगदीश, सिद्दीकी, 4 दोस्त। और गीता विजयन इन्होंने निभाया इसमें एक रोल। तो एक्टिंग मतलब अच्छी थी सबकी, और जो वो विलन जो था उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सिद्दीकी अली, मतलब बहुत ही अमेजिंग कहानी है, मतलब उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है और इसको डायरेक्ट भी किया है ना। तो मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है उन्होंने बना रखी है ना। जो शुरुआत में जो होता है वही परफेक्ट बनाया था, एक फ्रेश कॉन्सेप्ट। हाँ, मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी बना रखी है उन्होंने, और बहुत अच्छा मतलब उनका जो डायरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। मलयालम फिल्मों से ही मेनली ली गई है, रीमेक बनाई गई थी जो उस समय। बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में मलयालम फिल्मों से ही उन्हीं मतलब मलयालम फिल्मों का ही रीमेक किया गया है, खासकर जो कॉमेडी फिल्में हैं। पहले तो हमें पता नहीं था, पर अभी हमने मतलब बहुत सारी जो कॉमेडी फिल्में देखी है, तो तब हमें पता चला कि इनसे उनको रीमेक किया गया है। जब इसका हिंदी फिल्मों को, हाँ, जब ये हमारे कमेंट सेक्शन में आया वीडियो में कि ये इस फिल्म का वो करो, हाँ, रिएक्शन दो, ये ढोल फिल्म का रीमेक है, तब हम हाँ, मुझे भी तभी पता चला कि ये फिल्म ये रीमेक है, ढोल रीमेक है। मुझे लग रहा था ढोल मतलब ओरिजिनल है, तो तभी मुझे पता चला ना कि ढोल भी मतलब रीमेक है। और हमने इसको भी देख लिया। बाकी फिल्म अच्छी है, मज़ा आया इस फिल्म को देख के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।